ستھرا پنجاب پروگرام کی افتتاحی تقریب وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ مریم نواز نے ستھرا پنجاب پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، نواز شریف ستھرا پنجاب پروگرام شروع کرنے پر بہت خوش ہیں۔ پنجاب بھر میں صفائی ستھرائی کا بہترین پروگرام لائے ہیں۔ اب شہروں اور دیہات میں صفائی کا ایک نظام ہوگا۔ پروگرام کے لیے اربوں روپے کی جدید مشینری خرید لی ہے۔ ستھرا پنجاب کے بعد صوبے میں یورپ کی طرح صفائی نظر آئے گی۔ یہ ایک ایسا کام ہے جس سے پنجاب کے رہنے والے ہر شہری کو، ہر شخص کو فائدہ ہوگا۔ کئی درجن میٹنگز کے بعد، کئی سینکڑوں سیشنز کے بعد، اتنی محنت کے بعد، اتنی ڈسکشن کے بعد آج چند ماہ کے اندر پنجاب میں، پورے پنجاب میں صفائی کا ایک زبردست اور مربوط نظام، جس میں شہروں اور گاؤں کی یکساں صفائی ہوگی، وہ آپ سب کے آج سامنے ہے۔ FWMC صفائی ستھرائی سے بری الذمہ لوکل گورنمنٹ کے زیر اہتمام تقریب میں آج معاہدہ سائن ہو جائے گا۔ FWMC اب آپریشنز کی نگرانی کرے، گلیاں بھی جگمگائیں گی۔ حکومت نے صفائی ستھرائی کے لیے 4 ارب 38 کروڑ کی سالانہ گرانٹ منظور کر لی۔ ضلع کے لیے 75 کروڑ روپے سے زائد کی فنڈز جاری۔ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ٹھیکیدار سے کام لے گی۔ صفائی کے لیے نیا عملہ بھرتی کیا جائے گا۔ تحصیل ٹوبہ پر سالانہ 1 ارب 46 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ گوجرا کی صفائی ستھرائی 1 ارب 25 کروڑ سے کی جائے گی۔ تحصیل کمالیہ کی صفائی پر 70 کروڑ 86 لاکھ روپے سالانہ لگیں گے۔ پیر محل کی صفائی 87 کروڑ 95 لاکھ روپے سے ہوگی۔ ضلع بھر میں 4 ٹھیکیداروں کو کام سونپ دیا گیا۔ محکمہ ہائی وے جھنگ کی اجمن تک 15 ارب کی لاگت سے بین الاضلاعی سڑکوں کی تعمیر شروع۔ جھنگ سے دوسرے شہروں کو جانے والی تمام سڑکوں پر کام کا آغاز کر دیا گیا، جس پر تقریباً 15 ارب روپے لاگت آئے گی۔ محکمہ ہائی وے نے بین الاضلاعی منصوبوں پر کام شروع کر دیا۔ تاہم شہر کی میونسپل کمیٹی کی حدود میں موجود سڑکوں کی حالت انتہائی خراب ہے۔ گوجرا روڈ پر گہرے گڑھے موجود، جبکہ ٹوبہ روڈ پر اڑتی دھول کی وجہ سے سفر کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ دارالسکینہ روڈ پر کام فیزیبلٹی رپورٹ تک محدود، جبکہ کالج روڈ اور سرگودا روڈ کی حالت بدتر ہو چکی ہے۔ شہریوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ شہر کی اندرونی سڑکوں کی مرمت بھی کی جائے تاکہ مسافروں کو پریشانی سے نجات مل سکے۔ یہ 5 سے 6 سال کا عرصہ گزر گیا اس ٹوٹے کو، یہ بالکل ناکام ہویا پڑا ہے اور مٹی دھوڑ سے بندوں کو کھانسی بیماری لگ رہی ہے، تو لہذا گورنمنٹ سے گزارش ہے بھائی یہ ٹوٹا جلد سے جلد تعمیر کیا جائے۔ سرگودا روڈ، چنیوٹ روڈ اور رنگ روڈ پر بھی گڑھوں کی بھرمار سے سفر کرنا انتہائی دشوار ہو چکا ہے۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ تانیہ والا میں ایک ایسا منفرد گاؤں جس کے ارد گرد تمام دیہات تانیہ والا تحصیل کا حصہ اور درمیان میں واقع یہ گاؤں جڑا والا تحصیل کا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جڑا والا کے 9 دیہات تحصیل تانلے والا میں شامل کیے گئے، مگر چک 434 گافبے امرایا کو نظر انداز کر دیا گیا۔ چک 434 گافبے کی رہائشی حکومتی ستم کے خلاف سراپا احتجاج ہو گئے۔ احتجاجی مظاہرے میں گاؤں کے بچے، بڑوں، بزرگوں، امام مسجد، نوجوانوں، سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ مظاہرین نے ہاتھوں کی زنجیر بنا کر یکجہتی کا اظہار کیا۔ ہمارا حق ہمیں دو اور ہمارا گاؤں تانلے والا میں شامل کرو کے نعرے لگائے گئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ تانلے والا تحصیل بننے سے قبل یہ چک سمندری میں شامل تھا۔ چک 434 گافبے تھانہ بالک کا علاقہ تھا۔ تانلے والا تحصیل بننے پر اس گاؤں کو جڑا والا میں شامل کیا گیا۔ اس گاؤں کے ساتھ ہمیشہ ہی انتقامی کارروائی کی گئی ہے۔ ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ سے اپیل ہے، ڈی سی کمشنر فیصل آباد، ڈی سی ہو گئے، اے سی ہو گئے، جو بھی ان معاملات میں جتنے بھی انتظامیہ ہے، بیوروکریسی ہے، ہماری ان سے ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کر کے ہمارے گاؤں کو بھی تحصیل تانلے والے میں شامل کیا جائے۔ تحصیل جڑا والا ہے نا، 50 تو 55 کلومیٹر سانو سفر پوندا ہے، 7-8 کلو یا اخیر زیادہ تو زیادہ 10 کلو سانو تاندلا پوندا ہے۔ ساڈا مقصد ہے کہ اسی ادوں واپس آئیے تے اسی اس تحصیل تاندلے نال اسی رہنا چاہتے ہیں۔ مکینوں کا مزید کہنا تھا کہ اس گاؤں کا جڑا والا سے فاصلہ 55 کلومیٹر ہے، تانلے والا صرف 10 کلومیٹر پر ہے۔ خریداری و دیگر معاملات کے لیے تانلے والا کا رخ کرتے ہیں، جس کا سفر گھنٹوں پر محیط ہے اور پورے دن کا ضیاع ہوتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ گلریز اقبال، سٹی 41 تانلے والا۔ ایک طرف حکومت پنجاب کی گندم اگاؤ مہم اور دوسری طرف کسان گنا لے کر دربدر۔ حکومت پنجاب اور شوگر ملوں کے کسان کو 400 روپے فی من دینے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ گنے کی قیمت 350 روپے فی من تک محدود۔ کسان پھٹ پڑے، بولے سوچی سمجھی سازش کے تحت کسان کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات بلال جوگر کی رپورٹ میں دیکھیے۔ گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے حکومت چست، فصلوں کے ریٹ بڑھانے میں سست۔ پنجاب حکومت کسانوں کے ساتھ ہاتھ کرنے سے باز نہ آئی۔ 1 سال محنت کے بعد کسان گنا لے کر دربدر۔ مناسب ریٹ نہ ملنے پر کسان دل برداشتہ ہو گئے۔ شہباز کسانہ نے کہا، ملز مالکان خود ساختہ فیصلے کر رہے ہیں، جان بوجھ کر کوالٹیز کا بہانہ بنا کر لوٹ مار کر رہے ہیں۔ اس ٹائم ضرورت اس بات کی ہے کہ گورنمنٹ
फौरी तवज्जो दे, ये अपने लॉन्ग मार्च क्रश करने की जो ये मीटिंगें करते हैं, इनसे जो 20% मीटिंगें ये एक गरीब के चूल्हे की तरफ ये तो अपना कंसंट्रेट करके ये करें, तो मैं कहता हूं कि इनका कोई हालत चांस बेहतर हो। राना हुसनैन ने कहा, खेतों में कमाद की फसल मौजूद है, गंदम कैसे लगाएं? गन्ने की मुनासिब कीमत मिलेगी तो काटेंगे। मजीद कहा, किसान से सस्ती अजनास खरीद कर मार्केट में महंगी फरोख्त की जाती है। हुकूमत ने कीमतों पर अमल ना करवाया तो किसान हर फसल का बाइकआउट करेंगे। कमाद की फसल पे लोगों को उम्मीद थी कि ये पैसे आएंगे, हम गंदम बीज लेंगे, खाद लेंगे, ये लेंगे, तो काश करेंगे। अब कमाद के पैसे नहीं मिल रहे। हुकूमत पंजाब की मुकर्रर करदा कीमत 400 रुपए फी मन पर अमल दरामद ना होना लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। टैक्स रिटर्न्स में जायदाद, गाड़ी और असासे छुपाने वालों को रगड़ा लगाने का फैसला एफबीआर ने लंगोट कस लिए हैं। गलत तफसीलात की फराहमी पर 10 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। असासों की तफसीलात छुपा कर कम टैक्स अदा करने वालों को अब सख्त सजाओं का सामना करना होगा। जायदादों, गाड़ियों और दीगर असासों की तफसीलात छुपाने या गलत जाहिर करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होगी। एफबीआर गलत तफसीलात देने वाले को 10 लाख रुपए तक जुर्माना आयद करेगा। हकाइक छुपाने वालों के बैंक अकाउंट भी मुंजमद किए जाएंगे। एफबीआर हुकाम के मुताबिक शहरियों की बड़ी तादाद अपनी आमदन को कम जाहिर करके रिटर्न जमा करवा रही है। एफबीआर के मुताबिक आमदन और असासों की तफसीलात छुपाकर टैक्स चोरी से कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचता है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में पुलिस मुकाबला, दौरान डकैती फर्नीचर शॉप के गार्ड का कातिल मतलूब डाकू अंजाम को पहुंच गया। अपने नाज़रीन को बताएं कि झंग में मुआयना पुलिस मुकाबले में 2 खतरनाक बैनुल-सूबाई डाकू अंजाम को पहुंच गए। सैटेलाइट टाउन के सेम्पाल चौक के करीब कार सवार मशकूक अफराद को नाके पर रोका गया तो गिरफ्तारी के खौफ से मुलजमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और फसलों में जा छुपे। साथ ही मुलजमान की फायरिंग की जद में आकर 2 डाकू नासिर और फयाज जो है वो जान की बाजी हार गए। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में पुलिस मुकाबला, दौरान डकैती फर्नीचर शॉप के गार्ड का कातिल मतलूब डाकू अंजाम को पहुंच गया है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर और आपको बताएं कि जदीद टेक्नोलॉजी होते हुए भी बड़ी वारदातों का सुराग लगाने में मुसलसल पुलिस नाकाम दिखाई दी। फैसलाबाद पुलिस डकैती की बड़ी वारदातों का सुराग लगाने में कामयाब न हो सकी। रवां साल 3 मिलियन से जायद मालियत की 25 राहजनी की वारदातें रिपोर्ट हुई। पुलिस 3 मिलियन से जायद की सिर्फ 9 वारदातों का सुराग लगा सकी। 16 बड़ी वारदातों के डाकुओं का पुलिस तय्युन ही नहीं कर सकी। 16 बड़ी वारदातों के मदई मसरूका रकम की बरामदगी के लिए थानों में ख्वार हो गए। कैमरामैन मलिक इरफान के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। अब आपको बताएं कि कमर्शियल दुकानों, प्लाजों और सरकारी इमारतों में आग बुझाने के हालात नापैद हो गए हैं। तफसीलात जानते हैं रिपोर्ट। जंग में कमर्शियल दुकानों, प्लाजों और सरकारी इमारत में आग बुझाने के आलात की अदम मौजूदगी ने खतरनाक सूरत हाल पैदा कर दी। रेस्क्यू 1122 की रिपोर्ट के मुताबिक शहर भर में आग से बचाव के हिफाजती इकदाम न होने का इंकशाफ। जंग में गुज़श्ता माह आतिशदगी के 30 वाक़यात रोनुमा हुए, जिनमें लाखों मालियत का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। आग बुझाने के आलात की अदम दस्तयाबी से नुकसानात में इजाफा हुआ, जिस पर शहरियों ने तशदीद तशवीश का इजहार किया है। पिछले महीने भी सुनने में आया कि 30 से ज़्यादा जो आतिशदगी के वाक़यात हुए हैं, तो जब तक 1122 पहुंचती है तो वो काम जो है ना जी ज़्यादा ऊपर चला जाता है। तो इसलिए जो गल्ला मंडी के ताजर हैं, आड़तियान है या जो भी दुकानदार हैं, उनको भी चाहिए कि इनका इंतज़ाम करना चाहिए ताकि माली नुकसान से बचा जा सके। रेस्क्यू हुकाम ने दुकानदारों, प्लाजा मालकान और सरकारी इदारों को आग बुझाने के आलात नस्ब करने का पाबंद बनाने के लिए सिफारिश की है। पेट्रोल पंप्स और इर्द गिर्द जितने भी हैं जहाँ पे आतिशदगी का मवाद होते हैं, वहाँ पर हम लोगों को जाकर बताते हैं कि आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर और सेफ्टी के आलात जितने भी हों वो उनके पास होने चाहिए। हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं, चेक करते हैं। तो हम उनको एक मैसेज देते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी का और दूसरों की ज़िंदगी का भी खास ख्याल रखें। शहरियों का इंतजामिया से कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा करते हुए कहना था कि हिफाजती इकदाम न होने से जानी और माली नुकसान का खदशा बढ़ गया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। अब आपको बताएं कि फर्ज और ईमानदारी की आला मिसाल रेस्क्यू 1122 ने शहरी से बरामद 40 लाख रुपए की खती रकम मुआहिकीन के हवाले कर और 3 दिसंबर खुसूसी अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। फैसलाबाद तंजीमुल इंसान का इदारा बच्चों को पिकनिक पर ले गया।
फैसलाबाद में खसूसी बच्चों के आलमी दिन के हवाले से तंजीमुल निसान इदारे ने बच्चों को सिंध बाद का विजिट करवाया। खसूसी बच्चों ने खूब झूले लिए और एंजॉय किया। तंजीमुल निसान के सदर मोहम्मद इफ्तिखार कहते हैं कि स्पेशल बच्चे मुआशरे में अहमियत के हामिल हैं। तो स्पेशल अफराद की तंजीमें अपने इस दिन को मुख्तलिफ तरीकों से मनाते हैं, तो हम भी तंजीमुल निसान के बच्चों के लिए कई सालों से ये सिंध बाद लेके आते हैं और यहाँ बच्चे अपना एंजॉय करते हैं। सोशल एक्टिविटी हमेशा बच्चों के लिए बड़ी ज़रूरी है। बच्चों ने रहना तो इसी सोसाइटी के अंदर और इसी सोसाइटी के अंदर अपना रोल प्ले करना है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए बच्चों के लिए जो कि उनको एक सोशल गैदरिंग का एक एहसास दे। खसूसी बच्चों के आलमी दिन पर स्पेशल चाइल्ड ने अपने वालिदैन के साथ वक्त गुजारा। वालिदैन भी बच्चों को देखकर खुश हुए। कहते हैं हमें खसूसी बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। हमें इन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए और इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारे बच्चे जो है वो आगे जाके अपनी ज़िंदगी में अपने आप का कोई मुकाम हासिल कर सके, अपने आप को कामयाब बना सके। तंजीमुल निसान की टीचर कहती हैं हर साल आज के दिन स्पेशल बच्चों को सिंध बाद लेकर आते हैं। खसूसी बच्चे खास तवज्जो और मोहब्बत के हामिल हैं। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। खसूसी अफराद के आलमी दिन की मुनासबत से डिवीजन भर में तकरीबात जारी थी। जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा से माजूर होने के बावजूद इंतहाई पुरअज़म और पुरजोश दिखाई देने वाले माजूर अफराद की सलाहियतें, इनमें मुल्क को खिदमत करने के लिए कुछ करने का जज्बा भी सामने आता है। दुनिया भर की तरह शोरकोट में भी आज स्पेशल अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर में तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें बच्चों के लिए खाने के मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। असातिज़ा का कहना है कि इस दिन को मनाने का मकसद हुसूसी बच्चों को भी आम आदमी जितनी ही अहमियत दी जाए कि जो स्पेशल बच्चे हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं, हमारे साथ के हैं, ताकि इनको भी इग्नोर ना किया जाए, ये भी लाइफ को दूसरे बच्चों की तरह एंजॉय कर सकें और हम इनको भरपूर मौके अता करते हैं ताकि बच्चे जो है अच्छे तरीके से इस दिन को मनाएं और लोगों को अवेयरनेस हो। अहमदपुर सियाल में भी स्पेशल अफराद के आलमी दिन की मुनासबत से गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर में तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें स्पेशल बच्चों ने तिलावत, नात और इशारों की ज़बानी कौमी तराना भी पेश किया। मुकर्रिरीन ने इस दिन की अहमियत पर रोशनी डाली। 3 दिसंबर इंटरनेशनल डेफिड पर्सन विद डिसेबिलिटीज मजदूरी के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है और ये पूरे दुनिया में मनाया जाता है। आज मजदूर अफराद का आलमी दिन है और आज मजदूरों के हकूक और मुआशरे की जिम्मेदारियों पर बात करेंगे। मजदूरी जिस्मानी भी हो सकती है, ज़हनी भी हो सकती है, पैदाइशी भी हो सकती है और हादसाती भी हो सकती है। मुकर्रर अफशान और इनका कहना था कौमी आबादी का 10% हिस्सा स्पेशल अफराद पर मुश्तमिल है। तालीम की मदद से स्पेशल बच्चे कारामद शहरी बन सकते हैं। फैसलाबाद में मसाइल बढ़ने लगे हैं, तजावुजात की भरमार है। फैसलाबाद इंतजामिया मसाइल से नजरें चुराने लगी। अलमदीना कमर्शियल क्लॉथ मार्केट में तजावुजात की भरमार। दुकानदारों ने रास्ते पर कब्जा जमा कर सरकारी अराजी को कमाई का जरिया बना लिया। शहरियों और राहगीरों को शदीद परेशानी का सामना लगा रहता है। फैसलाबाद में सड़कों की हालत जार बदलना मुहाल बन गया। फैजान मदीना चौक पर सूसा रोड टूट फूट का शिकार। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरी सड़क की जबोहाली के बायस परेशानियों में घिर गए। खासा फैसलाबाद लाइनें बिछाकर गफलत की नींद सो गया। पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 फवारा चौक में लाइनें बिछाने के लिए सड़क तो खोदी गई लेकिन अमला सड़क को दोबारा मुरम्मत करना ही भूल गया। मुतासरा सड़क पर जा बजा मलबे के ढेरों से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होने लगी। टेन्योर्ड इंतजामिया की अदम तवज्जो से सुई गैस रोड कचरा कुंडी का गढ़ बन गया। सड़क पर जगह जगह कचरे के ढेर। अहले इलाका ताफुनज़दा माहौल में रहने पर मजबूर हो गए। मुतासरा शहरियों का कहना था कि तवील अरसे से यहाँ यही सूरत हाल बरकरार। 18 हजारी के वसू आस्ताना सेंटर पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकूम तकसीम। 18 हजारी के इलाके वासु आस्ताना में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खवातीन में रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है। तहसील के वाहिद सेंटर पर दूर दराज इलाकों से आने वाली खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद जिसके बायस गहमा गहमी रही। सेंटर पर अमले की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर खिदमात की फराहमी का भी इंतजाम किया गया है। सेंटर पर बीमार खातून को गाड़ी में लाया गया जिस पर अमले ने खुद जाकर उनकी वेरिफिकेशन की और उसे रकम की फराहमी की। वकीलों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि 18 हजारी में मजीद मराकज कायम किए जाएं ताकि उन्हें तवील सफर और रश की मुश्किलात से निजात मिल सके। 18 हजारी दे विच एक सेंटर है पिया लिहाजा हुकूमत वक्त तो अपील करने हैं कि जी मुस्तहिक औरतें उन्होंने जो पैसे खवातीन को मिलते हैं नजीर इनकम सपोर्ट दे वो लिहाजा 3 सेंटर होने चाहिए अपना 18 हजारी दे विच ताकि वो अमन सुकून जड़ा ना। अवामी हलकों ने हुकाम से मुतालबा किया कि वासु आस्ताना के वाहिद सेंटर पर दबाव कम करने के लिए मजीद मराकज कायम किए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा खवातीन को सहूलियात फराहम की जा सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग।